Hello everyone, today we will discuss about the experiment which is determination of Planck constant and work function using photoelectric effect. देखो कि ये है instrument for this experiment and now I will discuss very briefly about the working formula about this experiment. देखो ये जो working formula कहाँ से आया, कैसे ये derived हुआ, for that we have made separate video you can find out in part 2 जहाँ हमने डिस्कस किया है कि about the theory and about the error calculation of this experiment. In this video क्या करेंगे, सिर्फ कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके we can find out the Planck constant ये दिखाएंगे. बेसिकली the procedure we will discuss in this video lecture. तो वर्किंग फार्मूला क्या है, देखो वर्किंग फार्मूला इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. अब ये वी नॉट क्या है, वी नॉट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड हियर एंड व्हाट इज द फाइव, फाइव इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल. मैं ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ इधर, क्योंकि ये सब ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, न्यू कौन सा लाइट के लिए और फाइव वर्क फंक्शन किस चीज़ के लिए, ये सब मैंने डिस्कस किया है वीडियो पार्ट 2 में, जहाँ हमने डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी के बारे में ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरर कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो पार्ट 2 में तुम्हें ये सब इन डिटेल्स में पता चलेगा, ठीक है. अब देखो इन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज द वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह. अब y क्या है, y इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, m इज h बाई ई ये होता है स्लोप एंड x इज न्यू. तो इफ वी प्लॉट along the x axis the frequency न्यू and along the y axis the stopping potential we will find out a straight line, क्योंकि this equation is similar to the equation of straight line, है ना. अब देखो from the slope, if we take the slope is nothing but h by e. So if we find out the slope from here, let's say slope s is equal to delta v naught by delta nu from that one. So from this curve we will find out the slope. अब ये slope किसके साथ इक्वल है, slope h by e के साथ इक्वल है ना. So if we equal the slope is equal to h by e, then from that relation easily we can find out what is the h. H is equal to electronic charge E into slope. So from the experiment we will find out this curve, and from the curve we will find out the slope, and if we find out the slope, if we multiply with the electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into this slope, then we will find out what is the Planck constant. Okay, and you can also observe that this straight line intercept at the negative v naught axis, or from that equation what is the intercept, intercept is 5 by e. So from our graph paper if we could measure this intercept, let's say this intercept is I, so this intercept will be I is equal to 5 by e, and from that one we can find out phi equal to E into I. So what is the phi? Phi क्या था? Phi was the work function of the metal used. तो work function अगर हमें determine करना है तो from that curve we will first find out what is the intercept, and if we multiply the intercept with the electronic charge then we can find out the work function. So that's why this experiment is known as to determine the work function and the Planck constant together, and the principle of this experiment is based on the photoelectric effect. इसके बारे में हमने पार्ट 2 में इन डिटेल्स डिस्कस किया है, ठीक है. अब चलो करना क्या है, as you know that first you have to make a table like that one. Okay, so in the left side we will use several color filters. अब देखो ये सब कलर फिल्टर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. चलो डायरेक्टली मूव कर जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं. फर्स्ट
लेट्स टेक ए क्लोज लुक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में क्या है देखो, इंस्ट्रूमेंट में एक लाइट है, देयर इज ए लाइट सोर्स, राइट, एंड देयर इज ए ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब विच इज नोन एज, सो इस ट्यूब से इफ वी टर्न ऑन द लाइट, लाइट में पास थ्रू दैट ट्यूब, बट लाइट तभी पास करेगा जब ट्यूब का एक कवर होता है उसको हटाएंगे। तो ये अगर कवर हम हटा देंगे, सो इफ वी टर्न ऑन द लाइट, लाइट विल डायरेक्टली पास थ्रू द ट्यूब, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तभी इस पहले ही करना होगा कि इसको निकलना होगा। और चीज़ देख लो यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड है दिखाई दे रहा है, और डिस्प्ले बोर्ड के नीचे एक टगल स्विच है। दिस स्विच इफ वी टेक इट अलॉन्ग राइट साइड वी कैन मेजर द वोल्टेज हियर, एंड इफ वी टेक इट along this side we can measure the current which will be in microampere range। अब देखो ये जो नॉब है ना, this is known as the current multiplier। You have to make this current multiplier in this position, that is it is into 0.001, क्योंकि much more accuracy के लिए we will use this setup, ठीक है। So current multiplier will be set here at 0.001। अब ये जो नॉब है ये लाइट इंटेंसिटी, देखो इफ आई टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, अब ये स्विच ऑन हो चुका है, अब लाइट बंद है ना। सो इफ वी जस्ट टर्न दिस स्विच, देखो लाइट धीरे धीरे करके जलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट लाइट को मैक्सिमम इंटेंसिटी में रखना है। देखो जितना मैं इसको घुमा रहा हूँ ना धीरे धीरे करके, ऐसे मतलब टर करके मत घुमाओ, धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। धीरे धीरे घुमा के इसको मैक्सिमम पोजीशन में रखना है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस स्विच, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है। सो सर्किट के बारे में थियोरिटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे, अब ये तुम्हें सिर्फ समझना है कि कैसे एक्सपेरिमेंट को किया जाए। एंड देयर इज ए टगल स्विच, वन अनदर टगल स्विच। तो इसको अगर इस साइड में करोगे सो इट विल बी इन द प्लस, दैट मीन्स ए पॉजिटिव वोल्टेज विल बी अप्लाइड अगेंस्ट द विल बी अप्लाइड ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है। इसके अंदर ये जो जिस मेटल के हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा उसका वर्क फंक्शन निकलने जा रहे हैं या प्लैंक कांस्टेंट को वेरीफाई करने जा रहे हैं, दिस इज इनसाइड दिस चेम्बर, इसके अंदर वो मेटल सीट है, ठीक है। और ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट ऑलवेज मेक इट अलोंग द राइट साइड, ये जो की है ना इसको नेगेटिव साइड में रखना है, ठीक है। हो गया। अब देखो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इसका ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब का जो कवर है इसको पहले हटाओ। नाउ वी विल यूज दिस रेड फिल्टर, और रेड फिल्टर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड फिल्टर में क्लियरली देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 635 नैनोमीटर। दैट मीन्स फर्स्ट इसको प्लेस करो इस ट्यूब के ओपनिंग में, देन टर्न ऑन दिस लाइट, लाइट को टर्न ऑन करो और इसको क्या करना है धीरे धीरे घुमा के मैक्सिमम इंटेंसिटी में रखना है। अब ये जब मैक्सिमम इंटेंसिटी में है सो लाइट विल पास थ्रू दिस फिल्टर, और फिल्टर से जब ये लाइट ट्यूब के अंदर से निकल के मेटल प्लेट के ऊपर पड़ेगा, दिस लाइट विल बी द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 635 नैनोमीटर। ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना 635 नैनोमीटर, इसका मतलब है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैट फिल्टर एंड पासेस थ्रू दिस ट्यूब एंड फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, the wavelength of this light will be 635 nanometer, ठीक है। So now just observe this डिस्प्ले में कौन सा डायरेक्शन में ये स्विच है, करंट की डायरेक्शन में। मल्टीप्लायर कहाँ पे है 0.001। अब लिटिल बिट करंट यू कैन ऑब्जर्व हियर 0.285, ये माइक्रो एम्पियर रेंज में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब टेबल पे थोड़ा आओ, मैं इधर टेबल पे दिखा रहा हूँ। सो इन दिस टेबल जो वेवलेंथ लाइट का यूज हो रहा है रेड लाइट, जिसका वेवलेंथ है 635 नैनोमीटर, देन इन दिस रो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वेवलेंथ इन इट्स फ्रीक्वेंसी। और हमें सबको पता है ना कि फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी क्या है,
c इज इक्वल टू लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है, और इन एयर भी मान सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको लैम्डा, लैम्डा मीन्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अब कौन सा लाइट यूज हो रहा है, ये वाला लाइट नहीं है, ये जब पास करके मेटल के ऊपर पड़ रहा है वो वाला लाइट। सो दिस लाइट का वेवलेंथ है 635 नैनोमीटर। सो 635 नैनोमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करो इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो यू विल गेट इट इज अबाउट 4.72 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो इधर क्या मैंने लिखा, इधर ओनली आई हैव जस्ट रिटन 4.72 बिकॉज इन दिस रो इसके साथ मैंने जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10⁻14 इस पर लिख के रखे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है जो रेड लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ 635 नैनोमीटर, इसका फ्रीक्वेंसी होगा 4.72 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सिमिलरली एक येलो लाइट यूज करेंगे जिसका ये वाला फिल्टर। सो अब इसको बंद कर देते पहले, ठीक है, इसको बंद करके रखो। सो व्हेन वी विल यूज दिस येलो फिल्टर हियर, सो आवर लाइट विल बी येलो लाइट एंड द वेवलेंथ इज 540 नैनोमीटर, इट इज रिटन हियर। उसको अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ज। सिमिलरली ऑरेंज लाइट का 5.26 इंटू 10⁻14 हर्ज एंड ब्लू लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा 6.50 इंटू 10⁻14 हर्ज, ठीक है। अब चलो, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे कि पहले लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, देख लो, एक साथ देखते जाओ। सो आई एम जस्ट टर्न ऑन द लाइट एंड सेट दैट लाइट इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी कंडीशन। सो करंट एट दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी करंट इज क्वाइट हायर 0.284, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंड ऑलवेज बी केयरफुल दैट दिस स्विच शुड बी इन द नेगेटिव साइड। अब हमें ये वोल्टेज जो एडजस्टर है ना इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सो व्हेन वी जस्ट इंक्रीज द वोल्टेज वी विल ऑब्जर्व हाउ मच करंट इज रिड्यूसिंग। ये इसको अगर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ना वोल्टेज को, ये नेगेटिव वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये करंट धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें कब तक इंक्रीज करना है, जब करंट जीरो हो जाए। जब करंट जीरो हो जाए और वी विल नॉट इंक्रीज दैट वन, बट एट दैट पार्ट वी हैव टू टेक मच केयर, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा घुमा दोगे ना तो योर एक्सपेरिमेंट मे बी एररफुल। तो इसको धीमे धीमे घुमाना है। अब ऑब्जर्व करते जाओ कि जब मैं इसको लिटिल बिट आई एम इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, देखो ये करंट डिक्रीज हो रहा है, ये करंट डिक्रीज हो रहा है। तो हमें कब तक करना है, एंड स्लोली वी हैव टू रोटेट दिस नॉब वेरी स्लोली। और कब तक करना है कि जब ये करंट जीरो ना हो जाए। सो अब द फर्स्ट डिजिट आफ्टर पॉइंट बिकम्स जीरो। अब हमें और भी केयर होके इसको घुमाना होगा, बहुत स्लोली। जितना स्लोली, जितना स्किलफुली करोगे उतना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एररलेस होगा, ठीक है। तो चलो ये घुमाते जा रहे हैं। अब ये रेड लाइट के लिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एट व्हिच वोल्टेज करंट बिकम्स जीरो, एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज द स्टॉपिंग वोल्टेज फॉर रेड लाइट। देखो अब ये 0.029 026 हो चुका है। अब धीरे धीरे इसको घुमाएंगे तो इट बिकम्स ये हो रहा है पॉइंट। अब और भी केयर होना, क्योंकि ये 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट के बाद जीरो हो चुका है। अब इसको जीरो करना है, मतलब केयरफुली, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा ना उसके बाद जितना भी तुम वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ ये जीरो में रहेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट एट व्हिच वोल्टेज करंट जस्ट बिकम्स जीरो। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उसके बाद तुम वोल्टेज दोगे तो जीरो ही दिखाएगा ना। तो देखो कि मैं और भी स्लोली और भी केयरफुली इसको इंक्रीज कर रहा हूँ वोल्टेज को, एंड करंट आई एम ऑब्जर्विंग। आई डोंट वांट टू गेट मच एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, सो राइट नाउ आई एम वेरी केयरफुल। देखो, सो अब और भी थोड़ा केयर। नाउ ये 0.001 देखो अब थोड़ा टगल कर रहा है, तो इसको और थोड़ा सा वोल्टेज देखिए। देखो अब फिक्स हो चुका है। यू कैन फाइंड आउट दिस इज राइट नाउ जीरो। सो करंट इज जीरो
एट विच वोल्टेज, हाउ टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज, वोल्टेज को देखने के लिए ये जो स्विच है ना इसको वोल्टेज की डायरेक्शन में घुमाओ एंड यू विल फाइंड द नेगेटिव 0.30 वोल्टेज. सो आई विल राइट हियर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड लाइट के लिए कितना है, -0.30 वोल्ट, ये वोल्टेज में है. ठीक है. When we have taken the data for the red light and we'll go for the yellow light, तो उसी बीच में क्या करना है, उसी बीच में तुम्हें लाइट का इंटेंसिटी बिल्कुल 0 करके इसको ऑफ कर दो. ठीक है. ये जो वोल्टेज एडजस्टमेंट था इसको भी एकदम मिनिमम पोजीशन में लेके आ जाओ और ये जो वोल्टेज की डायरेक्शन में था इसको करंट में कर दो. अब ये 0 करंट, कोई लाइट तो नहीं है, नहीं वोल्टेज भी नहीं दे रहा हो तो ये करंट 0 दिखा रहा है. अब एक काम करना है कि तुम्हें इस फिल्टर को चेंज करना है, फिल्टर को, रेड फिल्टर को चेंज करके वी विल यूज द येलो फिल्टर राइट नाउ. ठीक है. अब सेम यू हैव टू डू हियर कि इसको क्या करना है, फर्स्ट इसका लाइट को टर्न ऑन करो और इसको एक काम करो कि इसको मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी में लेके आओ और वेट 30 सेकेंड, क्योंकि इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी में आने में थोड़ा वक्त लगेगा. सो इसे 30 सेकेंड अगर वेट कर जाओगे सो यू विल गेट दैट दिस विल बी मच मोर स्टेबिलाइज्ड कंडीशन. ठीक है. और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था पहले कि देखो मैंने ये जो लाइट का पोजीशन ना 35 सेंटीमीटर के आसपास मैंने रखा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर टू गेट द बेटर रिजल्ट हियर. तुम इसको आगे इधर उधर करके भी कर सकते हो, लेकिन ये 35 में ही करना जब कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करना है. ठीक है. अब देखो, सो राइट नाउ वी आर यूजिंग द येलो फिल्टर, दैट मीन्स द येलो लाइट इज पासिंग थ्रू दिस ट्यूब एंड इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट. ठीक है. अब जब ये मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, फोटो करंट कितना हो रहा है, 1.250 के आसपास हो रहा है. नाउ अगेन वी हैव टू इंक्रीज आवर वोल्टेज कि ये करंट 0 हो जाए. तो इसको धीरे धीरे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जा रहा हूँ. मैं देखो पूरा डेटा लेके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू कि मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ. जब तक ना ये फर्स्ट डिजिट 0 हो जाए तब तक मैं थोड़ा जल्दी घुमा सकता हूँ कि, बट फर्स्ट डिजिट जब 0 हो जाए ना पॉइंट के बाद तो थोड़ा तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है. तो अब मैं थोड़ा रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा हूँ वोल्टेज को, क्योंकि मेरा पॉइंट के बाद जो डिजिट है अभी भी 4 है. तो इसको अगर 0 हो जाए तो देन okay, so your skill will be reflected in your data sheet and you must have to be patient here. देखो करंट अब थोड़ा केयरफुल हो जाओ क्योंकि ये 0 हो चुका है ना, अब तुरंत ये भी 0 हो जाएगा. सेकेंड डिजिट जो है ये भी 0 हो जाएगा. सेकेंड डिजिट तक मैं थोड़ा अपना जो इंक्रीज़ कर रहा हूँ जिस रेट में उसको थोड़ा रिड्यूस कर चुका हूँ. अब जब ये सेकेंड डिजिट 0 हो जाए और भी मैं स्लोली फाइनली आई विल इंक्रीज द वोल्टेज, क्योंकि हमें एररलेस डेटा चाहिए. अब देखो कि सेकेंड डिजिट तुरंत 0 होने वाला है. सो आई एम जस्ट इंक्रीज, अब 0 हो चुका है ना दोनों डिजिट. अब देखो ये थर्ड डिजिट यहाँ पे यू हैव टू बी मच मोर केयरफुल. ठीक है. अब देखो कि आई हैव टेकन, सो देन अब थोड़ा संभाल लो. ये दिस इज ओके, दिस इज 0. सो एट विच व्हाट इज द वोल्टेज फॉर दिस 0 करंट, लेट्स चेक इट. सो इट इज 0.67. सो ये हो रहा है मेरा -0.67 ये येलो लाइट के लिए. ठीक है. नाउ वी विल गो फॉर ऑरेंज लाइट. तो ये क्या करना है, इसको फिर लाइट इंटेंसिटी को घटा के बंद कर दो, इसको वोल्टेज एडजस्टर को पूरा घटा दो. ठीक है. सो नाउ यूज दिस ऑरेंज of 570 nanometer wavelength. So we'll use this orange filter here, and right now we will make it the turn on the light maximum sense mein. It is right now in the voltage, so we have to make it in the current. Okay, so current is 0.795 क्योंकि
पहला जो था क्या था भाई, पहला था 540 नैनोमीटर की येलो लाइट की जो वेवलेंथ, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज हायर, सो करंट वाज हाई. But right now I am using orange, it is 570 nanometer, so that means frequency is lower compared to this yellow light, so current is lower here. So now same thing करना है, इस current को जीरो करना है इस नॉब को घुमा के, और कुछ तो है नहीं तो इसको कर लो. मैं थोड़ा, क्योंकि I am skillful in this case right now, so I can handle this one. मैं थोड़ा तेज़ी से घुमा रहा हूँ, but don't do by yourself when you are performing this experiment. धीरे धीरे करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, चलो मैं चारों पॉइंट तुम्हें करके दिखाऊंगा, एंड आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू प्लॉट द ग्राफ हियर एंड फाइंड आउट द प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, ये भी मैं करके दिखाऊंगा, एंड हाउ टू फाइंड द एरर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. अब मैं थोड़ा केयरफुल हो रहा हूँ क्योंकि हमें ज़ीरो में रुक जाना है. So when this third digit becomes 0, then I have to stop myself. Okay, अब तो और ये 0 बन चुका है ना, current is 0. So let's check what is the voltage. So voltage is minus 0.51. So ये है minus 0.51 volt. ठीक है, अब सेम चीज़ करना है कि इसको इंटेंसिटी को बंद कर दो. ठीक है, एंड वोल्टेज रेगुलेटर को ऑफ कर दो. अब हमें चेंज करके आई विल यूज दिस द लास्ट फिल्टर, द फिल्टर ब्लू फिल्टर. द एक्सपेरिमेंट इज वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, बट यू हैव टू बी मच मोर केयरफुल व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. तो चलो इसके लिए भी करना क्या है, पहले एक काम करते हैं कि इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी हाई कर देते हैं एंड वेट फॉर 15 to 30 सेकेंड. अब देखो कि करंट 1.58 के आसपास है. सो नाउ वी विल इंक्रीज द वोल्टेज हियर, नेगेटिव वोल्टेज, बाय विच वी कैन गेट द जीरो करंट, जीरो फोटो करंट. तो चलो इसको घुमाते हैं. सो later on I will plot this curve and will show you how to extract the Planck constant value and the work function from the curve. ठीक है, चलो इसको थोड़ा जल्दी मैं घुमा रहा हूँ. अब थोड़ा केयरफुल हो जाओ क्योंकि अब ये जीरो होने वाला है सेकेंड डिजिट. And how to plot the graph or curve, I have made a separate video. Go through that one, and if you use these steps, then any curve will be very easy to plot. ठीक है, एक ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना. तो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा कि कितना पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस में, कितना पॉइंट लेना है, कितना सेल्स लेना है वाई एक्सिस में. अब थोड़ा केयरफुल हो जाओ एंड जीरो. ठीक है, अब देखो कि कितना वोल्टेज है. इट इज़ अबाउट 1.00. ये पॉइंट, ये इसके बाद ना पॉइंट ये दिखाई नहीं दे रहा, बट इट इज़ 1.00. सो इट इज़ माइनस 1.00 वोल्ट. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट इज डन. अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट डन होने के बाद तुरंत लाइट इंटेंसिटी, लाइट को बंद करो, फिर वोल्टेज एडजस्टर को मिनिमम में लेके आओ. ठीक है, इसको करंट डायरेक्शन में कर दो एंड टर्न ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट. उसके बाद फिल्टर निकालो, जो तुम लोग गलती करते हो ना, फिल्टर को नहीं निकालते और इसका कवर इसमें क्लोज करना है, अदरवाइज दिस मेटल प्लेट विल नॉट वर्क आफ्टर फ्यू टाइम्स ऑफ यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप. ठीक है, इसे क्लोज करके जाना है. सो एक्सपेरिमेंट इज डन. वी हैव टेकन द डेटा हियर फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. वी हैव गॉट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल्स. Then we will plot the stopping potential versus frequency curve, and from there we will find out this h and phi. So चलो अब ग्राफ प्लॉट करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे आ रहा है.